आइज़िया 46 चैप्टर 47 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। आइज़िया 46 47 चैप्टर, यशायाह की भविष्यवाणी 46 और 47 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। आइए पवित्र आत्मा, कुछ नहीं कहना है खुदा, बस आपसे सीखना है। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 46 आइज़िया चैप्टर 46 फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द आइडल्स ऑफ बेबीलोन कुड नॉट save themselves. God saves his people to the end. Idols not comparable with God. First word से पढ़ेंगे। Bel boweth down, Nebo stoopeth. Their idols were upon the beasts and upon the cattle. Your carriages were heavy loaden. They are a burden to the weary beast. They stoop, they bow down together. They could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity. Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb. And even to your old age I am he, and even to Boaz, even to Howard hairs will I carry you. I have made and I will bear, even I will carry and I will deliver you. To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like? They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith, and he maketh it a god. They fall down, yea, they worship. They bear him up on the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth. From his place shall he not remove. Yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Remember this, and shew yourselves men. Bring it again to mind, O ye transgressors. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Hallelujah. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Hearken unto me, ye stout-hearted, that are far from righteousness. Hallelujah. I bring near my righteousness, it shall not be far off, and my salvation shall not tarry. And I will place salvation in Zion, for Israel my glory. Hallelujah. देखिए, उद्धार परमेश्वर का है और परमेश्वर खुद उसको मनुष्य के सोचों के अंदर इतना नज़दीक लाता है कि वो उद्धार को पकड़ ले। ओके, तो उद्धार ये चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम अपने मेहनत या अपने काबिलियत से हम प्राप्त करें। वो परमेश्वर का दया है कि वो खुद हमारी सोच को उद्धार का सोच देना शुरू करता है। उद्धार हमको प्यारा लगने लगता है, उद्धार में हमारा मन लगने लगता है, और फिर हम उद्धार में उतर जाते हैं। ठीक है, तो उद्धार हमारी ओर से नहीं आता है, वो परमेश्वर चला कर लाता है हमारी सोच के अंदर, और हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ठीक है, तो कभी मत कहिए मसीहों को हम बदल रहे,
लोगों को हम बदल रहे मसीह में, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद उसका जिम्मेदारी लेता है कि इस इंसान के सोच को मैं उद्धार की सोचे दूंगा और ये सोचे उद्धार की वो पसंद करेगा और उसके पीछे पीछे वो हो लेगा। ये परमेश्वर खुद इंतज़ाम करता है। ओके, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। चैप्टर 47, God's judgments upon Babylon for her unmerciful dealings and pride shall be irresistible। एक्चुअली जब देखिए यहाँ पे 12 वचन देखिए क्या लिखा है 46 अध्याय के, Hearken unto me, ye stout hearted that are far from righteousness, यानी जो अधर्म के कामों में मगन हो चुके हैं। ठीक है, परमेश्वर उनको कहता है ध्यान दो, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमको, ध्यान दो, मैं उद्धार की कोई बातें तुम्हारी सोचों को पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ओके, ऐसा वो कह रहा है। ओके, तो जब दुष्टता करने वाले लोग दुष्टता करते हैं तो उनके सोचों को पोषण मिल रहा है दुष्टता के आत्माओं का। ठीक है, दुष्टता के सोचों का पोषण उनको मिल रहा है। ओके, पोषण यानी वो जादू टोना वाला पोषण नहीं कह रही हूँ, ये हिंदी में जो बोलते हैं पालन पोषण। ओके, उनका पालन पोषण शैतानी जगत में से किया जा रहा है, शैतानी आत्माएं उनकी सेवा कर रहे हैं। ओके, उनको वो अच्छे खासे तरह से संभाल रहे ताकि वो अच्छे खासे दुष्ट विचारों को लेकर उसके पीछे 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 सुनते सुनते चलते जाए। तो फिर ये परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनेंगे, है ना? तो अब परमेश्वर कह रहा है सुनो, फिर भी सुनो, लेकिन वो सुनने के लिए उनके हृदय स्टाउट हार्ट बना दिया गया है, यानी वो दुष्ट हृदय को कठिन बना देता है, वो हृदय को परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना करने को मजबूर कर देता है। ढीठ होकर परमेश्वर की आवाज़ को तुच्छ बनाकर वो वहाँ से निकल जाता है ऊंची गर्दन करके। ओके, ये कौन किया उसके अंदर से? वो जो उसकी सेवा कर रहे दुष्ट आत्माएं। ओके, ये मनुष्य ने किया क्या? नहीं, वो कौन किया? जो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको दुष्टता में बनाए रखने के लिए, दुष्ट सोचों में बनाए रखने के लिए, दुष्टता करने का उसको घमंड होने के लिए वो उस तरह से उसका हृदय को कठिन बना देता है कि ये गलती से भी परमेश्वर को ना माने, ये गलती से भी परमेश्वर के वचन को फ्रीडम ना दे, ये गलती से भी परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना करने का, उपवास करने का, आनंद उठाने का समय ना मिलने दे। ओके, दुष्टता के लिए ही वो इंसानों को इस्तेमाल करते रहे। तो इस प्रकार से वो उन लोगों को नरम हृदय होने नहीं देता है। ओके, इसके लिए जब आप बोलते हैं ना कि आप कमेंट्स में लिखते हैं ऐसा कि मेरे घर के लोग ये सता रहे, मेरे ऊपर ऐसे डाउट कर रहे हैं, मेरे बारे में ऐसे कह रहे, तो ये क्या है? ये क्या है? उनका हृदय परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए, इसके लिए कुछ दुष्ट आत्माएं लगी हुई है, उनकी सेवा कर रही है, उनके सोच को खिला रही है, पिला रही है, वो सोच दे रही है। जो कौन सी सोचे है? जो दुष्टता करने की सोचे है। ओके, और इसकी वजह से वो दुष्टता के सोच का उनके ऊपर इतना ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर वो सोचे इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो उसके पीछे 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 चले गए हैं और वो परमेश्वर के धार्मिकता, न्याय, प्रेम को तुच्छ मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं। ओके, वो बोलते हैं ऐसे जीने से दुनिया तो हमें पैरों के नीचे ही रौंदेगी, हमको ऐसे नहीं जीना है, हम तो बस दुष्टता करते हुए जिएंगे, तो हम जिएंगे इस पृथ्वी पे, नहीं तो हमारा जीना तो मुश्किल है। तो उनको विश्वास हो गया है दुष्टता करने के ही कारण जिंदगी जी जाती है। ये झूठ उनका अब मजबूत बन गया है, वो सोच है, वो सोच उनके अंदर का मजबूत बन चुका है, उनका विश्वास उसके ऊपर लग चुका है, उनकी पसंद उसके ऊपर आ चुकी है, अब वो उसी के पीछे चलते हैं। ओके, आप कितना भी सुंदर परमेश्वर का महिमा का काम उनके सामने लाओ तो भी उनका मन टूटता नहीं है उससे। वो सोचते हैं ये तो व्यर्थ है, ये तो कोई काम की बात है नहीं, इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।
ओके, क्योंकि उसके अंदर उनका विश्वास बाकी नहीं रहा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं खुद अभी क्या करूँगा, सोचों को लाऊंगा, उद्धार क्या है उनको बताऊंगा, उद्धार चखाऊंगा उनको, और फिर उनको इतनी उसकी प्यास बढ़ाऊंगा, इतनी उसकी लालसाएं बढ़ाऊंगा कि वो उसको पसंद करेंगे, उसके अंदर वो उतर कर चलते हुए आएंगे। तो ये परमेश्वर कहता है कि मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, अब तुम मेरी सुनना शुरू करो। ओके, जब हम प्रचार लगाते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम कुछ भी ऐसा परमेश्वर का सेवा का काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, हम उन लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुना रहे होते हैं। कोई भी हरकत से अगर आप किसी की मदद कर रहे हो परमेश्वर का भय रखते हुए कि ये इंसान को ज़रूरत है और हमने इसकी ज़रूरतों में ध्यान देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप उसको परमेश्वर क्या चाहता है वो आवाज़ उसको सुना रहे हैं। ओके, तो हमारे अंदर से हर एक बात परमेश्वर का आवाज़ होकर लोगों के जीवन में प्रवेश करता है। अब वो लोग उसको कैसे हैंडल करते वो उनका सवाल है। उनके दुष्ट आत्माएं उनके किस प्रकार के उनके हृदय को तैयार कर रखी है, वैसे वो हमको हैंडल करेंगे। ओके, तो उनका रिवर्ट बैक रिप्लाई हमको कैसे आता है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन हम खुद चलते फिरते परमेश्वर की आवाज़ है। ओके, उठते बैठते हमारी हरकतें, हमारा देखना भी, मुस्कुराना भी, हमारा बोलना भी, हमारा सब कुछ, हर एक बात परमेश्वर की आवाज़ को सुनाता है उन लोगों को जो अभी तक उद्धार में नहीं है। ओके, तो परमेश्वर इस प्रकार से उन लोगों का लाइफ को बोलता है तुम्हारे पास तो तुम्हारे दुष्ट आत्माओं की सेवा भारी चल रही है, लेकिन मेरी आवाज़ सुनो अभी। इसके लिए हम मसीही लोग इस प्रकार से परमेश्वर ने दुष्टता के जगत में नमक बनाकर रखे हुए हैं कि हम परमेश्वर का स्वाद उनके जीवनों में भरते हैं। ठीक है, तो वो परमेश्वर को समझे कि ये परमेश्वर क्या चाहता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 47 अध्याय 1 वर्ष से पढ़ेंगे। Come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground, there is no throne. O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called tender and delicate. Take the millstones and grind meal. Uncover the locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man. As for our Redeemer, the Lord of hosts is his name, the Holy One of Israel. Sit thou silent and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called the lady of kingdoms. I was wroth with my people, I have polluted mine inheritance and given them into thine hand. Thou didst shew them no mercy. Upon the ancient hast thou very heavily laid thy yoke. And thou sayest, I shall be a lady forever, so that thou didst not lay these things to thy heart, neither didst remember the later end of it. देखा, तो दुष्टता के जगत के लोग इतने अंधाधुन हो गए होते हैं दुष्टता करने में कि उनको आने वाला समय क्या विपत्ति उनके सामने लाके रखेगा उनको ज़रा भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके, 8 वचन से आगे, Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am and none else beside me. I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children. But these 2 things shall come to thee in a moment, in one day, the loss of children and widowhood. They shall come upon thee in their perfection, for the multitude of thy sorceries.
grace, and for the great abundance of thine enchantments. For thou hast trusted in thy wickedness, thou hast said, none seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee. And thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me. Therefore shall evil come upon thee. देखा, अब ये कारण है कि दुष्टता के जगत के लोगों का अंत निश्चित है, क्योंकि उनका घमंड उनको चलाता है। उनको लगता है कि उनकी ताकतें सही है और उनकी शक्तियाँ सब कुछ है और बस वो तो उसी का आदर करेंगे, बस और कुछ नहीं देखेंगे वो। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है उनका घमंड तोड़ना ज़रूरी है। और वो घमंड तोड़ने का तरीका क्या है? परमेश्वर दुष्टता के ऊपर ऐसे आक्रमण भेजता है कि वो उसके अंदर ठहर नहीं पाते हैं। ओके, वो नाक रगड़ कर परमेश्वर के पास आ जाते हैं फिर। ओके, कि नहीं, बस हो गई हमारी ओके, बस हो गई है, अब तो बस यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। ओके, इस प्रकार से फिर वो आ जाते हैं। तब तक के लिए उनके घमंड बनी रहती है। 11 वचन से आगे देखिए, Therefore shall evil come upon thee, thou shalt not know from whence it riseth, and mischief shall fall upon thee, thou shalt not be able to put it off, and desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know. Amen. तो आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप दुष्टता की ओर से अपने चाल चलन चलाओगे तो ये एक रास्ता है जो आपको बंधुआई में लेकर जाता है, और फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये बुखार कहाँ से आया। ओके, ये प्रकार का दर्द कहाँ से आया। ओके, ये प्रकार का ये विपत्ति कहाँ से आ गई, ये फाइनेंशियल फेलियर्स कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने परमेश्वर का नहीं माना और आपने अपने गलतियों के अंदर घमंड रख के उन्हीं गलतियों को दोहराते गए। तो फिर ये सारे रास्ते बन जाते हैं हमारे जीवन में खराबी आने का। ठीक है, 12 वचन से आगे, 12 वर्ष से आगे, स्टैंड नाउ with thine enchantments and with the multitude of thy sorceries wherein thou hast labored from thy youth, if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail. बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि जादू किया, टोना किया, जादू किया, टोना किया, ये किया, वो किया, मंत्र किया, श्राप दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनका करना उनके पास है। ओके, उनका कॉन्फिडेंस उनके पास है, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो मेरे ऊपर है। ओके, तो परमेश्वर तोड़ता है उनके कॉन्फिडेंस को, हम नहीं तोड़ते हैं। परमेश्वर अपने आप ही जाके उनके साथ फाइट करता है, हमको मालूम भी नहीं है कभी जाके उनके साथ फाइट कर लिया। हम बस यहाँ पे आराम से चल रहे प्रभु 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 करते हुए, और परमेश्वर वहाँ पे उनको 2-3 बराबर करके आ चुका होता है और उनको बता दिया होता है कि तू जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हो जाता है उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ मुकाबला करता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में वो अपने घमंड चढ़ाकर परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, तो वो परमेश्वर उनको बता देता है तुम जो समझ रहे हो उसमें दम नहीं है। अगर तुम समझते हो तुम में कोई दम है तो फिर मैं तुमको मुकाबला करता हूँ, मेरे लोग तो बाजू में रखो, मैं ही आता हूँ मुकाबला करने, करो मेरे साथ मुकाबला, हरा सकते हैं तो हरा के दिखाओ, वो लोगों को क्यों, मैं खुद आता हूँ, मुझे हरा के दिखाओ। ऐसा परमेश्वर उनके शक्तियों के साथ सामना करता है, और वो लोग देखते हैं उनकी शक्तियाँ परमेश्वर को इनकार नहीं कर पा रही है। ओके, और वो शक्तियाँ घुटना टेक रही है, और फिर तब उनका घमंड टूट जाता है और वो समझ जाते हैं ये परमेश्वर है भाई, बस हो गया। ओके, इसके साथ ज़्यादा कुछ आगे जाना और बड़ी मुश्किलों का रास्ता खोलना हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आपके खातिर परमेश्वर जाके उनको सबक सिखाते हैं। ठीक है, 13 वचन से आगे पढ़ेंगे। Thou art wearied in the
एक मिनट, हम 12 वचन और एक बार पढ़ेंगे। स्टैंड नाउ विद दाइन एन्चैंटमेंट्स एंड विद द मल्टीट्यूड ऑफ दाई सॉर्सरीज वेयर इन दाउ हैस्ट लेबर्ड फ्रॉम दाई यूथ, इफ सो बी दाउ शाल्ट बी एबल टू प्रॉफिट, इफ सो बी दाउ मेयस्ट प्रिवेल। हाँ, सच में दाई यूथ मतलब एकदम छोटे बच्चों से लेकर लोग सिखाते हैं कैसे प्रकार के शक्तियों को कैसे निपटना है, कैसे उसके सामने जाना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे किसी के साथ उन शक्तियों को भेज के काम कराना है। बाप रे बाप, ओके, इतना कुछ वो इतना मेहनत करवाते हैं छोटे बच्चों से लेकर वो, ओके, वो शक्तियों के सारे कारनामे उनको सिखा के रखते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कि वो शक्तियों का मुकाबला हम नहीं कर पाते, तो हम ऐसे ऐरे गहरे लोग हैं। लेकिन हम ऐरे गहरे निश्चित दिखाई देंगे, क्योंकि सच में हमको वो शक्तियाँ क्या है, कहाँ से लाए, क्या किए, इसका तो हमने अभ्यास नहीं किया है। हमने उसके बारे में कोई जानकारियाँ नहीं रखी है, ना ही उसके नीचे हमारे जीवन के कोई समय हमने बिताए हैं, है ना। तो इसकी वजह से हम थोड़ी जानेंगे वो लोग क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, हमको क्या पता है। हम निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से धुले हुए लोग ये सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो ये चक्कर में पड़ने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो जाके उनको बोलता है बस कर, तू मेरे लोगों को छोड़ दे, वो नहीं मुकाबला कर पाए तेरे साथ, अब मैं आता हूँ खुद तेरे सामने, अब कर मेरे साथ मुकाबला। तुझे क्या क्या लगता है सब तू यूज़ कर मेरे ऊपर, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन सा परमेश्वर हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मसीहों को जिम्मेदारी नहीं उठाना है कि आप सारे बैटल्स जीतना है। ओके, मसीह को डिपेंड रहना है, परमेश्वर उस बैटल में उतर कर जाए और हमारे शत्रुओं को सामना करे। आमीन। 13th वचन से आगे पढ़ेंगे। Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators stand up and save thee from these things that shall come upon thee. Hallelujah. देखिए, मैंने मून फेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था ये लोग ये कौन से समय में, ये पर्टिकुलर समय में ही क्यों मुझे परेशान करते, ये पर्टिकुलर डे में क्यों करते, ये डे में क्या होता क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है इस डे के अंदर कि ये लोग उसका इस्तेमाल करते और इनको उसका प्रॉफिट क्या है। ऐसा मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने स्टडी किया, और ये वचन देखिए क्या कहता है। वो वचन कहता है ठीक है उनके पास बहुत कुछ है, हाँ, वो देखते हैं अगला समय सो एंड सो है, अशुभ है, नहीं जाना है आगे। ओके, हाँ, ये वाला समय हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दोस्ती बनाओ, बातें करो, मज़े करो, एंजॉय करो। हाँ, फिर ऐसा नहीं, अब इसके बारे में कुछ तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके ऊपर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। हाँ, इसका बंदोबस्त करो कुछ ना कुछ। ओके, तो ये सारा वो देखभाल के चलते, जैसे बोलते ना रास्ते में धूल फूक फूक कर वो अपने पैरों को रखते हैं। इतना अलर्ट रहते हैं वो, चौकस रहते हैं समय के विषय में। अब कौन सा समय चल रहा है, अब कौन सा दिन चल रहा है, अब कौन सी चीज़ें चल रही, अब कौन सा माहौल चल रहा है। इतना ज़्यादा मेहनत लगा के वो अपने जीवन को चला रहे इस पृथ्वी के ऊपर, और परमेश्वर कहता है चला लो और देखो तुमको वो बचाता है क्या। ओके, तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे सारी चीज़ों के पीछे मत जाइए, क्योंकि ये सब कुछ उनकी मूर्खता के आधार से है। वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और इसकी वजह से उनको लगता है कि ये सब कुछ में ही उनके बचाव के रास्ते हैं। यहाँ खुल्लम खुल्ला परमेश्वर चैलेंज करता है 13 वचन में, बचा लो अपने आप को, बचा सकते हैं तो बचा के दिखा दो। ओके, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये सब कुछ को भी मैंने ही बनाया है, मुझे पता है उसको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख देना है। ओके, तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है उनको, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये सितारा तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गया। ओके, अब यहाँ तो नहीं होना चाहिए था, वो वहाँ पर कैसा गया। ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर उनकी अदला बदली करके उनको कंफ्यूजन में डाल देता है और बोलता है अब बचा लो अपने आप को। ओके, तो इसके लिए आप डरना नहीं है ऐसे समयों से,
अमावस्या आया, पूर्णिमा आया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा कर रहे, जादू कर रहे, टोना कर, मत डरिए, कुछ नहीं है उसके अंदर से। आप उसके बारे में निश्चिंत रहो, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा किए हैं। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा करता है कि आपकी रखवाली करे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपनी रखवाली करने की, क्योंकि आपने भरोसा किया है परमेश्वर के ऊपर। इसके लिए परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो बोले स्वर्गदूत को, जा उसकी रखवाली कर। आमीन। तो आप अपने सिर पे ये सारा बोझ मत उठाइए, ये सब देख देख के चलेगा, ठीक है। हम मसीहों के लिए नहीं है ये सब। 14th वचन देखेंगे, Behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them. They shall not deliver themselves from the power of the flame. There shall not be a coal to warm at, nor fire to set before it. Thus shall they be unto thee with whom thou hast labored, even thy merchants from thy youth. They shall wander every one to his quarter, none shall save thee. हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर उनको बिल्कुल नाकामयाबी का खुल्लम खुल्ला तमाशा बता दे रहा है कि वो नहीं बचेंगे। वो लाख बातें करे, लाख बोले, लाख बातें करे, लाख करोड़पति के बातें सुनाए लोगों को कि हाँ हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम हाँ बिल्कुल कॉलर टाइट करके घूमो, छाती चौड़ा करके घूमो, सब कुछ करो। लेकिन जब हम दुर्बल इंसान, ओके, कमज़ोर इंसान जब दोहाई लगाता है, उनके सारे टाइम चेंज कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। तो इतने खतरनाक है मसीह, हमको उनसे क्या लेन देन है, क्यों हमने उनका खौफ रखना है। आमीन। यशाया पढ़ेंगे, यशाया की भविष्यवाणी 46-47 अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। 46 अध्याय। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लादी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। हालेलुया। यानी इसका मतलब है परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमको गिराने वाले गिराएंगे, बंधुआई में लेकर जाने वाले बंधुआई में लेकर जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा भी और फिर से तुमको गिरते हुए हालतों में से निकालकर उठाकर खड़ा भी करूंगा। ओके, तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं बंधुआ होने नहीं दूंगा, मैं तुमको पकड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ होने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा है। वो बोल रहा है करने वाले करेंगे, लेकिन मैं तुमको उनके हालतों में पड़े रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो आप विपत्ति, संकट, डर, ये खौफ, ये सब कुछ के बीच में रह रहे हो तो आपको उसके अनुसार नहीं सोचना है। आपको ये देखना है परमेश्वर ने वायदा किया है कि हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, बीमारी, नो प्रॉब्लम, हम पड़े नहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हाँ ठीक है, विपत्ति कोई बात नहीं है, उसमें हम पड़े नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। फेलियर्स, डिप्रेशन, कोई बात नहीं है, हम उसके अंदर पड़े रहने वाले लोग नहीं हैं। आमीन। तो इस प्रकार से हमारा जीवन है, हमारा जीवन परमेश्वर उसके अंदर ठहरने नहीं देता है, जिसके अंदर दुष्ट हमें पकड़ के रखना चाहता है, उसमें से वो हमको छुड़ा कर लाता है। दुष्ट दोबारा पकड़ता है, दोबारा छुड़ाता है, हम दोबारा गिरते हैं, दोबारा परमेश्वर उठा लेता है। हमारा रास्ता परमेश्वर कभी भी हमको अकेला नहीं चलने देगा, हमको पकड़े रखेगा, वो थामे रखेगा, वो हमारे संगति में हमारे साथ साथ बना रहेगा वो। आमीन। हमारे अंदर से वो चलता फिरता रहेगा। आमीन। तो हमने मसीही जीवन मसीही की तरह ही समझना है, ना कि वैसा कि जो मसीह की तरह नहीं है।
हमारा जीवन मसीह है और हमारा भरोसा परमेश्वर है, और हमारे साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बाहर सब जगहों में व्यवस्था करता है। ओके, 5 वचन से पढ़ेंगे आगे। तुम किस से मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वही खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। और यदि कोई उसकी दोहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हालेलुया। देखा, उद्धार सिर्फ परमेश्वर से आता है। इसके लिए लोग बोलते हैं ना कि हमारा कुछ प्रॉब्लम आया था, हम यहाँ वहाँ गए थे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उद्धार कहीं से नहीं आता है, सिर्फ परमेश्वर से आता है। आप बड़े से बड़े मिनिस्ट्री में चले जाओ, अगर परमेश्वर ने सोच रखा है कि आपको उद्धार नहीं देना है तो आप घूमते रहो, नहीं मिलेगा आपको उद्धार। ओके, छुटकारा नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप सबसे पहले ध्यान रखना है, छुटकारा मिनिस्ट्री नहीं दे रही है, छुटकारा मिनिस्टर्स नहीं दे रहे, छुटकारा परमेश्वर दे रहा है। जब भी आप कोई सेवकाई में जाते हैं, सेवा में जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपको लाभ मिलेगा उसका, तो आप ये पहले ध्यान में लेना है कि आपकी ये सोच परमेश्वर को अर्पण चढ़ाओ और फिर परमेश्वर को बोलो कि ये मेरे लिए लाभदायी बना। ओके, और तब जाके वो सेवा या सेवक या सेवकाई जो कुछ भी वहाँ हो रहा है आपके लिए वो फलदायी बन जाता है, लाभदायी बन जाता है। ओके, तो आप किसी को दोष नहीं देना है कि वहाँ के लोगों ने मुझे ठीक नहीं देखा, वहाँ के पासबानों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो जिम्मेदार नहीं है, परमेश्वर है। ओके, तो आपको जो चाहिए पहले आप परमेश्वर को दीजिए, सामना कीजिए परमेश्वर का, और फिर आप जाइए, देखिए परमेश्वर किस प्रकार से फिर उसकी ओर से वो कैसे कैसे लोगों को अरेंज करता है और आपकी सहायता करता है। ओके, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर परमेश्वर अपने आत्मिक अरेंजमेंट्स कर देता है, डिवाइन अरेंजमेंट्स कर देता है, यानी स्वर्गदूतों को लगा देता है। ठीक है, 8 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। हालेलुया। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम बोलते हैं दुष्ट का अंत निश्चित होगा, क्योंकि उसके पास युक्ति है, परमेश्वर के पास युक्ति है और वो युक्ति निश्चित है, निश्चित। और वो परमेश्वर की इच्छा है कि दुष्टता खत्म रहे, वो पूरी ना हो, उसके अंदर का कोई काम हमारे ऊपर बना ना रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो कहता है मैं युक्ति करता हूँ और उस युक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और वो मेरी इच्छा है कि तुम उद्धार पाओ, मेरी इच्छा है कि तुम चंगे हो जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओ, मेरी इच्छा है तुम परिवार के सुख में रहो, मेरी इच्छा है तुम बाल बच्चों में आनंदित रहो, ये सब कुछ जॉब में रहो, अच्छे से रहो, ये सारा परमेश्वर का इच्छा है। ओके, और इसके लिए वो युक्तियाँ बनाता है। ओके, और वो कहता है उस युक्ति में स्थिरता रहेगी और वहाँ पर मेरी इच्छा को मैं पूरी करके रहूँगा, कोई आड़े नहीं आ सकता है, कोई नहीं, कोई शैतान की ताकत नहीं, कोई मनुष्य की शक्ति नहीं, कहीं से कुछ नहीं, जो है परमेश्वर है आपके साथ। आमीन। 11 वचन से आगे, मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाला
वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। हालेलुया। हमारे लिए धार्मिकता को हमारे मन को छूने दिया परमेश्वर ने। समझ में आया? बहुत गहरा अनुभव है ये। ठीक है, हमारे अंदर हम यीशु के पीछे चलना असंभव था, ये केवल परमेश्वर ने किया। हमारे अंदर उस एरिया तक यीशु को पहुंचाया जहां हम इनकार नहीं कर पाए यीशु को। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, उद्धार पॉसिबल है हर एक इंसान के लिए। तो आप सुसमाचार सुनाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो इंसान के उस एरिया तक यीशु को लेकर जाएगा जहां पर फिर वो मनुष्य दुष्टता करना छोड़ देगा और यीशु 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 करता हुआ यीशु को मानते हुए यीशु के पीछे हो लेगा। वो परमेश्वर संभव करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। तो सुसमाचार में आप कभी भी डरिए मत, मतलब पीछे मत हटिए, आप लोगों को सुसमाचार देते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, लोगों के हृदय के अंदर का वो डीप सेंसिटिव जगह जहाँ पर वो अपने कब्जे रखते हैं कि नहीं तो नहीं, बस उसको छुड़वाता है परमेश्वर और उसको ना कि हाँ में बदल देता है। ओके, तो ये करता है संभव परमेश्वर। आमीन। आगे पढ़ेंगे। वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। हालेलुया। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। बेबीलोन को दंड। 47 अध्याय पहले वचन से। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतरा और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रहे और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य के स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनहों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। हालेलुया। देखिए, ये एक स्पिरिचुअलिटी का रियाम है, ओके, जो परमेश्वर छोड़ता है किसी के ऊपर, ठीक है। और जब परमेश्वर छोड़ता है तो वो पूरे बल से उतर आता है लोगों के ऊपर, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं छोड़ता है तो हम प्रार्थना करने से उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। जब परमेश्वर की ओर से वो रियाम निकल आता है विपत्तियों का, तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है,
ठीक है। लेकिन अगर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा है, शैतानी जगत में से कोई चाल चलन तरीकों से वो किसी ने कुछ करके छोड़ा है, तो उसको रोक पाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर जाके उसको रोक सकता है। आमीन। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब मसीह में है तो परमेश्वर की ओर से आप सब कुछ को नियंत्रित करके ठीक ठिकाने रख सकते हो। ठीक है। 10 वचन से आगे, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती। हालेलुया। देखो, परमेश्वर मंत्र को भी मंत्र के साथ जवाब दे रहा है। ओके, वो कहता है तुझे लताड़ने के लिए और एक मंत्र मैंने ऐसे छिपा के रखा है जो अभी तक तुझे पता नहीं है। ओके, तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है, दुष्टता करने वाले लोग, उनको लगता है कि बस हम दुष्टता करते जाएंगे और इनका परमेश्वर ऐसा है कि हम अगर सॉरी कहेंगे तो परमेश्वर मान लेता है और हम छुटकारा ले लेते हैं। नहीं, एक समय ऐसा भी रहेगा कि आप सॉरी कहेंगे और फिर भी आप हालत से उभर कर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो हमेशा ही परमेश्वर प्रायश्चित को सुनता है ये नहीं है, एक समय रखता है परमेश्वर कि वो प्रायश्चित की तरफ अपना ध्यान हटा देता है। ओके, और आपको पड़े रहने देता है उस दुख और कष्ट में। ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमेशा बारंबार 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 आप दुष्टता करते जाओगे और प्रायश्चित करते रहोगे, ये मूर्खता रहेगी। ठीक है। एक दिन ऐसा रहेगा कि आप प्रायश्चित करते करते थक जाओगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा नहीं। वो परमेश्वर ने ठहरा के रखा हुआ समय है। ओके, 12 वचन से आगे, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है, बाल्यावस्था से महारथी बन जाते हैं छोटे से छोटी उम्र में से ही। पाँव में दुष्ट आत्मा, हाथ में दुष्ट आत्मा, आंखों में दुष्ट आत्मा, बालों में दुष्ट आत्मा, सिर में दुष्ट आत्मा, पैर में दुष्ट आत्मा, सब जगह में आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे उनकी दुष्ट आत्मा आपको देख रही होती है। ओके, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी दुष्ट आत्मा रहती है, मुझे नहीं पता था ये। ओके, मैंने बुक्स पढ़ा तभी पता चला। ओके, तो इतना वो लोग दुष्ट आत्मा को लेके घूमते रहते हैं। फिर आपको लगता है नहीं, मैं तो मनुष्यों को देख रही हूँ। अभी नहीं, मैंने इतने सारे बुक्स पढ़ के देखा और मैंने देखा, समझा, मैंने जाना कि अरे रे रे रे, ये लोग सिर्फ मनुष्य नहीं है, ये सारे दुष्ट आत्माओं के भंडार है, कोठार घर है। ओके, तो इसके लिए अभी मैंने उनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको देखना मतलब दुष्ट आत्मा हमको देख रही है। ठीक है, अगर मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर से तो परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो अगर कहीं है मुझे नहीं देख रहे, तो भी उनके बदन के ऊपर रखे हुए दुष्ट आत्माएं वो हमको देख रही होती है। और ये वो लोग जानते हैं कि अब हमारी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर चढ़ने जा रही है। ओके, तो इस प्रकार से है कि हम मनुष्यों को देखते हैं हमारे इर्द गिर्द में, लेकिन वो ऐसे भी मनुष्य रहते हैं जो बाल्यावस्था से एकदम छोटे उम्र से अपने अंदर दुष्ट आत्मा रखने का अभ्यास कर चुके होते हैं, अपने साथ दुष्ट आत्माओं का घेरा लेके घूमने का अभ्यास कर चुके होते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको बैड लक, मिसफॉर्चून, पावर्टी, रगड़े झगड़े, आपका स्वभाव बदल जाना, कुछ लोगों के संगति में होकर आने के बाद आपके ऊपर ऐसे अटैक्स आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हम कहीं घर गए थे, किसी जगह गए थे, वहाँ से आए, ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या हो गया, तो आप उस घेरे को टकरा के आए जो ये बाल्य अवस्था से अभ्यास करके रखे हुए अच्छे खासे महारथी लोग थे। आपको लगा होगा ये छोटा बच्चा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आपको लगा होगा। नहीं, वैसा नहीं है। ओके, ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों के पूरे बाल्य अवस्था को दुष्ट आत्माओं के साथ
पूरा तरह से भर के रखते हैं और फिर बच्चों को हमारे सामने लाते हैं। तो फिर अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमारे ओर, हम तो देख रहे हैं लेकिन वो हमारी ओर जो देख रहे हैं वो दुष्ट आत्माएं होती है। ओके, और हमारे 5 सेंसेस के साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है वो। तो आपको लगता है आप मनुष्य जाति में मनुष्य जाति है, नहीं, मनुष्य जातियों में भी बाल्य अवस्था से ऐसे दुष्ट आत्माओं के अभ्यास किए हुए लोग बैठे हुए हैं। देखिए अब क्या है, इसके लिए जल्दी से किसी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं जाना है। ओके, जल्दी से किसी के साथ में, लोगों के संगति में जल्दी से मन खोल के नहीं जाना है, जल्दी से उनको स्वीकार नहीं करना है, जल्दी से नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये सारा उनके अंदर का दुष्टता का माहौल आपको अटैक के लिए रहता है और वो अपने मर्जी से चलाते हैं। अगर वो फेवर देना चाहे तो वो फेवर देने वाले दुष्ट आत्माओं को रिलीज करते, अगर आपका नुकसान करना चाहे तो वो नुकसान करने वाले दुष्ट आत्माओं को आपके पीछे लगा के चले जाते हैं। ओके, तो वो उनके मर्जी के ऊपर है। अगर आपने उनको अच्छा बर्ताव दिया और वो सोच कर आए नहीं तो हम तो इसको बस कुछ गलत करके ही जाना है, तो वो आपके अच्छे बर्ताव को नहीं जानेंगे, वो गलत करने के लिए आए हैं, गलत करके चले जाएंगे। ओके, अगर किसी ने ठान लिया है कि मैं इसको अच्छा ही करूँगा, तो आप कितना भी उनके साथ बुरा कीजिए वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। ऐसे दुष्ट आत्माओं के झुंड उनके पास रखे हैं उन्होंने। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हम कभी बोलते हैं उनके बारे में, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, ये तो ये परेशान कर रहा है, वो वैसे परेशान कर, तो वो लोग मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये लोगों ने फेवर कर रखे होते हैं, वो दुष्ट आत्माएं उनके लिए अच्छे अच्छे काम कर रखे होते हैं, तो वो लोगों को उनके अच्छे गुण पता है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बुरे काम कर रखे होते हैं, तो हमको पता है कि वो बुरे काम करने वाले लोग हैं। इस प्रकार से वो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स में अपने लोगों को अच्छे अच्छे काम दिखाते हैं और जिनको वो दुश्मनी में बनाए रखना चाहते हैं उनको वो बुरे बुरे काम दिखाते रहते हैं। जो लोगों को वो दूर रखना चाहते हैं उनको वो बुरे बुरे काम दिखाते रहते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, और जिनको वो अपने पास रखना चाहते हैं उनको वो अच्छे अच्छे काम दिखाते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा। ओके, तो इसके लिए आप देखेंगे अगर आप बुरा कहेंगे किसी के बारे में तो दूसरे लोग रहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये लोग तो अच्छे हैं, हमारे सामने तो हमने कभी ऐसे देखा नहीं उनको ऐसे करते हुए। वो मानेंगे नहीं आपका, क्योंकि उनको वो लोगों ने अच्छे आत्माओं से काम करवाए हैं। ओके, तो परमेश्वर कहता है ये सब ठीक है तुम्हारा जो भी तुमने अभ्यास कर रखा है, अब परमेश्वर बोलता है उपयोग में ला, संभव है तो उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तो युक्ति करते करते थक गई है, अब तेरे ज्योतिषी 13 वचन से पढ़ रहे हम, तो युक्ति करते करते थक गई है, अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। ओके, तो परमेश्वर है वो, मुझे इसके लिए वो वचन अच्छा लगता है, वो गीत अच्छा लगता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तू ऊंची उठने वाले लहरों का भी प्रभु है। तो हमारे लिए कोई आंधी, कोई तूफान, कोई ऊंची लहर डराने के लिए नहीं है, सबके ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर हम जानते हैं। ओके, लेकिन दुष्टता के जगत ये लहर को डर जाएंगे। ओके, इस प्रकार की अवस्थाओं के सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उसको कंट्रोल करने की ताकतें नहीं है। इसीलिए आप जीत जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। ओके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से जवाब भेजता है, लेकिन वो लोग हार जाते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर के ऊपर चढ़ाई करने की ताकतें नहीं रहती है। ओके, इसके लिए वो लीगल ग्राउंड देखते, कानूनी अधिकार पकड़ लेते हैं। ओके, अगर आपने कुछ गलती कर रखी है तो वो परमेश्वर के सामने लेकर जाते और बोलते देख इसने ये गलती करी है, इसकी वजह से मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा या मैं इसकी पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार से वो परमेश्वर से विवाद करते हैं। ओके, इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा ना कि अपने बैरी के साथ रास्ते में है तभी तो समेट कर ले, नहीं तो वो तुझे न्यायाधीश को सौंपेगा, न्यायाधीश तुझे हकीम को सौंपेगा और हकीम तुझे बंदी गृह में डाल देगा।
है ना। तो ये एक एक पाई चुकता न हो तब तक वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये बंधुआई हो गया। ओके, लेकिन परमेश्वर ने और एक बार वचन क्या कहा, यशायाह में हमने पढ़ा पिछले दिनों में, अध्याय में कल ही पढ़ा कि कैसा परमेश्वर है, उस बंधुआई में से भी छुड़ाने की वो ताकत अपने अंदर रखा हुआ है। ओके, जब शत्रु नालिश करेगा तब भी परमेश्वर कहता है कि फिर भी मैं तेरी ओर से हो जाऊंगा, अगर तूने पश्चाताप किया तो मैं तेरी ओर से आवाज उठाऊंगा और शत्रु को चुप कराऊंगा और तेरे ऊपर उसके सारे इल्जाम दोषों को मैं हटा दूंगा यीशु के लहू से, और मैं तुझे निर्दोष साबित करके तेरा रास्ता सीधा करके तुझे दे दूंगा। ओके, तो इसके लिए हमारे अंदर से परमेश्वर की ओर झुकना सबसे बेहतरीन रास्ता है, और शत्रु से कभी नहीं डरना परमेश्वर को महिमा देता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। देख 14 वचन से आगे, देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग तापने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है देखा, उनके भी परिश्रम है, जैसा अपने नए नियम में हमने पढ़ा कुलोसियों में परिश्रम करना पड़ता है, आत्मिक परिश्रम। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मेरा बोझ हल्का है, तुम मेरा क्रूस ले लो, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, है ना। वो बड़ा परिश्रम है जो तुम परिश्रम कर रहे हो, दुष्टता जगत की गुलामी कर रहे हो, पावर्स इकट्ठे कर रहे हो, वो परिश्रम जो है भारी भरकम है, मर जाओगे उसके नीचे रहते रहते। ओके, और उसके लिए कोई ताकत है भी नहीं उसके अंदर कि वो आपको आखिरी समय तक संभाले रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ओके, यीशु ने क्या कहा कि तुमको मैं उस परिश्रम में से छुड़ाऊंगा और तुमको मैं आसान रास्ता दूंगा। अब देखिए, मैं भी आत्मिक जीवन में हूँ और दुष्टता के जगत के लोग भी आत्मिक जीवन में हैं। मेरा आत्मिक जीवन और उनका आत्मिक जीवन कंपेयर करके देखेंगे तो मेरा आत्मिक जीवन, मैं परमेश्वर के संगति में ऐसे हूँ जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। विपत्ति नहीं है क्या? है। दुख कष्ट नहीं है क्या? है। चीज़ें मेरी खराब नहीं होती है क्या? होती है। समय मेरा बिगड़ता नहीं है क्या? बिगड़ता है। ओके, और मैं स्वर्ग की बात कर रही हूँ कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। ओके, क्या है इसके अंदर? आराम है। आराम कौन सा? शरीर का आराम नहीं, मन के अंदर की तसल्ली का आराम। ओके, ये तसल्ली है मेरे अंदर कि मैं सही रास्ते में और सही तरह से परमेश्वर के योजना के अंदर स्थिर कर दी गई हूँ और मेरे रास्ते भटकेंगे नहीं, क्योंकि मेरा रखवाला विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो ये तसल्ली मेरा आराम है। लेकिन जो दुष्टता के जगत में है वो परिश्रम इतना ज़बरदस्त है कि उनको, आपने देखा, अभी पढ़ा आपने, क्या लिखा था एक जगह में कि उनको क्या क्या करना पड़ता है, कंधे पे लेके चलना पड़ता है, सोने को और क्या क्या चीज़ों को उंडेलना पड़ता है, उससे कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है। ओके, और फिर बाद में एक जगह में ये भी था कि वो कुछ समय असमय देख देख के चलते हैं, है ना, हमने पढ़ा वो। अब वो एग्जैक्ट वचन कहाँ है मुझे देखना पड़ेगा पीछे जाकर। ओके, तो वो सब कुछ करके भी परमेश्वर कहता है बचा ले अपने आप को, अगर बनती है तो बचा ले ठीक है, लेकिन बनेगी नहीं। ठीक है, तो अपने आप को बचा नहीं सकेगा, उसमें वो दम मैंने रखा ही नहीं है कि वो तेरा भरोसा बनाए रखे। हालेलुया। उसमें वो ताकत ही नहीं है जो वो भरोसा रख पाए। ओके, और उनकी मेहनत तो भारी है क्योंकि फंस तो गए, अब उसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसी ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। हालेलुया दुख भरा एंड है उनका ठीक है,
तो कितना सरलता से आपको दिखाई देता है। आपको कोई चांद, सूरज, दिशाएं, ये वो सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सब कुछ के ऊपर प्रभु है और यीशु मसीह को उसने सिर ठहराया है और हम उसके देह है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास कर रहा है। तो ख़त्म करना है बात, हमारे पास जो ताकत है वो पवित्र आत्मा है। जो हमारे अंदर निवास करता है वो बाहर रहने वाले से ज़्यादा सामर्थी है। हालेलुया। और जवाब हमको देना है क्या? नहीं। युक्तियाँ हमको करनी है क्या? नहीं। जिम्मेदारी हमको उठाना है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अपने आत्मिक जगत में से अपनी ओर से जाकर युद्ध करता है। हमने क्या परिश्रम करना है? उसकी आज्ञा पालन करते हुए चलना है। आमीन। जो परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छाओं को पूरा होने का रास्ता देते हुए चलना है। उसके धर्म, न्याय, प्रेम, सच्चाई में अपने जीवन के रास्ते चलना है। उसके भय में हमको चलना है। आमीन। वाओ, सो वंडरफुल गॉड वी सर्व, है ना? ऑलमाइटी गॉड वी सर्व, ब्यूटीफुल सेवियर, रिडीमर। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये वचनों की इतनी गंभीरता हमें सिखाई कि हम इसके अंदर से कभी अलग नहीं होंगे। हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है, तो ईश्वरीय व्यवस्थितपन में ला रहा है। तुझे धन्यवाद करती हूँ। एंड आई लव यू होली स्पिरिट एंड आई थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु नाम में हम ये प्रार्थना और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 4 चैप्टर 30 वर्स से 42 वर्स। 1 किंग्स 14th चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 30 वचन से 42 वचन तक। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय। हमने अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में बैठकर पवित्र आत्मा की सहायता से, अनुग्रह के आत्मा के सहायता से, सच्चाई के आत्मा की सहायता से सीखना है। ओके, देखा ना आपने दुष्ट जगत में कैसे लोग बाल्यावस्था से ही दुष्ट आत्माओं को चलाने का अभ्यास कर लेते हैं। तो हमको पवित्र आत्मा कहता है तो तुम लोग मुझे सीख लो कि मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो हम कैसे सीखेंगे? एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, पवित्र आत्मा जो सिखा रहा है उसको हमारे अंदर लेते हुए, विश्वास करते हुए। ओके, तो हम जब ऐसे 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर के आत्मा के सिखाए हुए और तैयार करके परमेश्वर के राज्य के कामों में बिठा दिए गए लोग होंगे हम। आमीन। और परमेश्वर हमारा बड़ा उपयोग करेगा और आनंद करेगा वो कि हमने इस प्रकार से अपने आप को होने दिया जैसा परमेश्वर चाहता था। आमीन। ईश्वरीय अवस्थाओं में हम दिखाई देंगे। आमीन। और ऐसा होने के लिए उसने हमें अनुग्रह का आत्मा दिया है, सच्चाई का आत्मा दिया है। निश्चित हमने अनुग्रह के आत्मा का, सच्चाई के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सब कुछ झूठ है खुदा, सब कुछ झूठ है। जितना भी आज तक हमने पिता तेरे बिना जीवन जिया उसमें सब कुछ झूठ था खुदा परमेश्वर, कुछ भी सच नहीं है। और हमारे लिए जो हमारे विरोध में शरीर रूप में शत्रुता करते हैं, सताते हैं, वो जो भी पिता परमेश्वर हमको समझ में आता है वो सारी सोचे भी झूठ है खुदा। कुछ भी उनके अंदर वो पावर नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है उनके अंदर, कोई नहीं खुदा, कोई नहीं। ऐसा कोई पावर उनके पास नहीं है कि उनको वो उद्धार दे सके, छुड़ा सके। हालेलुया। इसके लिए मेरे खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। झूठ के पीछे जाकर हम डरे और पिता हम अपने रास्ते कमज़ोर देखे और हमने अपने आप को दोष माना। हमें माफ़ कर दे क्योंकि वो सब कुछ झूठा था और हमको वो समझ नहीं आया था। अब हम समझने लगे हैं पवित्र आत्मा
तूने जब वचनों को सिखा रहा है, हम समझ गए कि शत्रु जो बनते हैं, हमारे विरोध जो चलते हैं, वो सब कुछ झूठ के साथ चलते हैं, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं रहती है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, सच्चाई केवल तुझ में है पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें तू प्रकट करके देता है। हालेलुया। और सच्चाई सदा काल बनी रहती है, झूठ हमेशा डगमगा जाता है, गिर जाता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, चट्टान पर बंधा घर तूने हमें बनाया। एंड आई लव यू जीसस, एंड आई लव यू होली स्पिरिट, एंड आई लव यू होली फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा धन्यवाद बलिदान स्वीकार कर मेरे खुदा परमेश्वर, क्योंकि हम सारे दिल से तेरे वचनों के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि तेरे वचन का मोल हम समझने लगे हैं। तेरा उजियाला हमें मनोहर लगने लगा है, वो मीठा मधु सा हमें लगने लगा है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि इस समान परमेश्वर, ये मिठास की तरह हमारा जीवन परमेश्वर तेरे सुंदर मीठेपन में बदलता जाए और बदलता रहे। नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करता रहे, इन वचनों में हमें स्थिर करता रहे, ईश्वरीय व्यवस्थितपन में हमें लेकर आता रहे, हमें ढलता रहे, ढालता रहे, चलाता रहे, अगुवाई करता रहे सच्चाई में। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद हो आबा।